ہر دن کو آخری سمجھ کر جی گئی زندگی ایسی زندگی ہے جس سے کچھ بھی چھینا نہیں جا سکتا۔ اس میں کچھ کمی نہیں ہو سکتی، بس صرف اضافہ ہی اس میں ممکن ہے۔ ایسے جیسے کسی پیٹ بھرے شخص کو مزید کھانا دے دیا گیا ہو۔ وہ مزید کھانے کی خواہش نہیں رکھتا، مگر وہ کھانا اپنے پاس رکھ سکتا ہے۔ کبھی یہ نہ سمجھنا کہ کسی شخص نے لمبی زندگی گزاری صرف اس لیے کہ اس کے بال سفید ہو گئے اور چہرے پہ جھریاں آ گئیں۔ اس کی زندگی لمبی نہیں تھی، بس اس کا عرصہ طویل تھا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے تم یہ سمجھو کہ کسی شخص کا سفر بہت طویل رہا، حالانکہ وہ جیسے ہی بندرگاہ سے نکلا ایک شدید طوفان میں پھنس گیا اور مخالف ہواؤں کے زور پر کبھی ادھر تو کبھی ادھر دھکیلا جاتا رہا، بار بار گھومتا اور چکر کھاتا رہا۔ ایسے شخص کا سفر طویل نہیں تھا، بلکہ وہ صرف طویل عرصے تک ہچکولے کھاتا رہا۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جب کسی سے اس کا وقت مانگا جاتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ یہ وقت اسے دے بھی دیا جاتا ہے۔ یہ دونوں لوگ صرف اس مقصد کو دیکھتے ہیں جس کے لیے وقت مانگا جا رہا ہے، لیکن خود وقت کا کوئی خیال نہیں کیا جاتا۔ وہ ایسے بیہیو کرتے ہیں کہ جیسے نہ کوئی قیمتی چیز مانگی یا دی جا رہی ہے۔ زندگی کے سب سے قیمتی خزانے کو معمولی شے سمجھ کر ضائع کر دیا جاتا ہے۔ وجہ بس اتنی کہ وقت مادی نہیں، غیر مادی ہے، نان میٹر ہے، اور وقت نان میٹر ہے جسے نہ جانچا جا سکتا ہے، نہ ہی ہاتھ میں لیا جا سکتا ہے، نہ بازار میں اس کی کوئی قیمت لگتی ہے، اسی لیے اسے بے وقت سمجھا جاتا ہے۔ لوگوں کو دیکھتے ہو کہ تنخواہوں اور پینشنز کے لیے اپنی محنت، خدمات یا وفاداری پیش کر دیتے ہیں، مگر وہ یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ وہ صرف محنت یا خدمت نہیں بلکہ وقت بھی دے رہے ہیں، مگر وقت کی ویلیو ہی نہیں لگائی جاتی۔ انسان اسے بے دریغ ایسے لٹاتا ہے جیسے اس کی کوئی قیمت ہی نہ ہو۔ لیکن انہی لوگوں کو دیکھنا، جب موت کا خطرہ سر پر آتا ہے تو یہ ڈاکٹروں کے آگے گڑ گڑانے لگتے ہیں۔ اگر انہیں سزائے موت کا خوف ہو تو اپنی تمام دولت لٹا کر بچنے کو تیار ہوتے ہیں، بس چند مزید لمحے جینے کے لیے۔ یہ تضاد کیا تمہیں حیران نہیں کرتا کہ وہی وقت جو انہوں نے بے دریغ لٹایا، اب اسے کمانے پر وہ سب لٹانے کو تیار ہیں جس کے لیے کبھی وقت لٹایا تھا۔ اگر ہم میں سے ہر کسی کے سامنے اس کی باقی زندگی کا حساب کتاب رکھا جائے، جیسے ہم اپنے گزرے ہوئے سالوں کو گن سکتے ہیں، حساب کتاب کر سکتے ہیں، تو سوچو وہ لوگ کتنے پریشان ہوں گے جن کے پاس محض چند سال باقی دکھائی دے رہے ہوں، اور وہ کتنی احتیاط سے اپنا ہر لمحہ گزاریں گے۔ مگر یہی لوگ وہ وقت جو مختص ہے بے دھیانی سے برباد کر دیتے ہیں۔ ہم اپنے وسائل، اپنی جائیداد کے انتظام میں تو چوکنے رہتے ہیں، لیکن اس چیز کی حفاظت میں غافل ہیں جو کسی بھی نامعلوم لمحے پر کسی بھی وقت ختم ہو سکتی ہے۔ مگر یوں نہ سمجھ لیجئے گا کہ لوگوں کو وقت کی ویلیو کا پتہ نہیں ہے۔ انہیں اس کی ویلیو کا اس وقت بڑا پتہ لگتا ہے جب وہ اپنے محبوب ترین لوگوں سے کہتے ملیں گے کہ کاش میں تمہیں اپنی زندگی کے کچھ سال دے سکتا، اور حقیقت تو یہ ہے کہ وہ دے بھی دیتے ہیں، مگر اس طرح کہ انہیں خود اس کا شعور تک نہیں ہوتا۔ مگر یہ دینے کا ایسا طریقہ ہے جس میں وہ خود کھو دیتے ہیں، بغیر یہ جانے کہ دوسروں کو کچھ بھی نہیں ملا۔ حقیقت یہ ہے کہ انہیں علم ہی نہیں ہوتا کہ وہ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، اور اسی لیے وہ اس نقصان کو محسوس کیے بغیر برداشت کر لیتے ہیں۔ کوئی بھی کھوئے ہوئے سالوں کو واپس نہیں لا سکتا، کوئی بھی تمہیں خود تمہاری زندگی واپس نہیں دے سکتا۔ زندگی اپنی راہ پر چلتی جائے گی، بغیر کسی وقفے کے، بغیر واپسی کے۔ یہ تمہیں اپنی تیز رفتاری کا احساس نہیں دلائے گی، بلکہ خاموشی سے گزر جائے گی۔ یہ کسی بادشاہ کے حکم یا عوام کے مطالبے پر رکے گی نہیں۔ جیسا کہ اس نے اپنے پہلے دن کا سفر شروع کیا تھا، وہ یوں ہی آگے بڑھتی جائے گی، نہ کہیں رکنے والی، نہ کسی طرف مڑنے والی۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ تم دنیا کے جھمیلوں میں کھوئے رہو گے، جبکہ زندگی تیزی سے آگے بڑھتی جائے گی، اور جب تمہیں احساس ہوگا تب تک موت آ چکی ہوگی، اور اس وقت تمہارے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا
सिवाय इसके कि इसे कबूल कर लो। क्या कोई चीज़ इससे ज़्यादा बेवकूफ़ी की हो सकती है कि कुछ लोग अपनी दूर अंदेशी पर फख्र करते हों, वो ख़ुद को गैर ज़रूरी तौर पर मसरूफ़ रखते हों ये सोचकर कि वो ज़िंदगी बेहतर कर रहे हैं, लेकिन दर हकीकत वो अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ उसे मुनज़्ज़म करने में गुजार देते हैं। वो अपने मंसूबे इस नज़र से तरतीब देते हैं कि वो मुस्तक़बिल में कामयाब हो सकें, लेकिन हकीकत ये है कि चीज़ों को मुअख्खर करना ज़िंदगी का सबसे बड़ा ज़ियाँ है। ये हर दिन को आते ही हमसे छीन लेता है और हमें हाल से महरूम करके गैर यकीनी मुस्तक़बिल का झूठा वादा देता है। ज़िंदगी गुजारने में सबसे बड़ी रुकावट इंतज़ार, तवक्को और उम्मीद है, जो हमेशा कल पर नज़र रखती है और आज को ज़ाया कर देती है। तुम उस चीज़ का बंदोबस्त कर रहे हो जो तकदीर के हाथ में है और उस चीज़ को छोड़ रहे हो जो तुम्हारे इख्तियार में है। तुम क्या देख रहे हो, किस मंजिल की तरफ तुम तेजी से बढ़ रहे हो, सारा मुस्तकबिल गैर यकीनी है। इसी पल में, इस लम्हे में जीना सीखो। हमारे अजीम शायर की पुकार सुनो, जो जैसे किसी अलहामी रोशनी से मामूर होकर एक गहरी हकीकत बयान कर रहा है। जिंदगी का सबसे हसीन दिन इंसान के लिए वही होता है जो सबसे पहले हाथ से निकल जाता है। तुम क्यों रुके हुए हो? शायर का मतलब है तुम सुस्त क्यों हो? अगर तुमने वक्त को पहले ना थामा तो ये तुमसे फरार हो जाएगा, और अगर तुम इसे थाम भी लो तब भी ये बहरहाल निकल ही जाएगा। इसलिए तुम्हें वक्त की तेजी का मुकाबला उसी की रफ्तार से करना होगा, उसे ज़ाये किए बगैर इस्तेमाल करना होगा। जैसे एक तेज बहते हुए दरिया से पानी पीने वाला जानता हो कि ये बहाव हमेशा नहीं रहेगा। शायर बहुत खूबसूरती से ताखीर के, तसाहल के नुकसान पर जोर देता है। वो बेहतरीन उम्र की बजाय बेहतरीन दिन की बात करता है, क्योंकि वक्त की तेज रफ्तारी के सामने तुम कितने ही हरीस क्यों ना हो जाओ, तुम्हारी बेफिक्री और काहली काबिल अफसोस है। तुम महीनों और सालों को एक तवील सिलसिले में फैलाते जा रहे हो, जबकि वक्त लम्हा लम्हा तुम्हारे हाथों से फिसल रहा है। शायर इसी दिन की बात कर रहा है, यानी यही दिन जो तुम्हारे हाथ में है और जो तुम्हारे हाथ से निकल रहा है। तो क्या इसमें कोई शक बाकी रहा कि बेबस इंसानों के लिए, यानी उनके लिए जो हमेशा दुनियावी मसरूफियात में खोए रहते हैं, सबसे बेहतरीन दिन वही होता है जो सबसे पहले हाथ से निकल जाता है। बुढ़ापा उन्हें उस वक्त आ लेता है जब वो ज़हनी तौर पर अभी बच्चे ही होते हैं। वो इसे ना समझने की वजह से इस हालत में इसका सामना करते हैं कि बिल्कुल निहत्ते और बेबस होते हैं। उन्होंने इसके लिए कोई तैयारी नहीं की थी और अचानक आज उसके सामने आ खड़े हैं, ये समझे बिना कि ये दिन करीब आ रहा था। ये ऐसे ही है जैसे कोई मुसाफिर गुफ्तगू में मशगूल हो, किसी किताब के मुताले में गुम हो या किसी गहरी सोच में खोया हुआ हो और अचानक ही देखे कि वो तो अपनी मंजिल पर पहुंच चुका है, बिना ये जाने कि वो किस कदर करीब आ गया था। जिंदगी का ये मुसलसल और इंतहाई तेज रफ्तार सफर भी कुछ ऐसा ही है, जो जागते और सोते यकसां रफ्तार से जारी रहता है, और जो लोग दुनिया के झमेलों में खोए रहते हैं वो इसका एहसास तब ही करते हैं जब सब कुछ खत्म हो चुका होता है, स्टेशन आ चुका होता है। अगर मैं इस मौजू को मुख्तलिफ दलाइल में तकसीम करके बयान करूं तो कई ऐसे सबूत पेश कर सकता हूं जो साबित करेंगे कि जो लोग दुनियावी मशगूलियात में गुम रहते हैं उन्हें जिंदगी बहुत मुख्तसर महसूस होती है। लेकिन फाबियानस, जो आज के आम फलसफी में से नहीं है बल्कि पुराने दौर के हकीकी मुफक्किर थे, कहा करते थे कि इंसानी ख्वाहिशात और बुराइयों को मंतिक से नहीं ताकत से काबू करना चाहिए। दुश्मन की सफ़ों में सुई चुभने से कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि उस पर जोरदार हमला करना जरूरी होता है। रज़ाइल को चुन चुन कर निकालने की बजाय उन्हें मुकम्मल तौर पर कुचल देना चाहिए। ताहम जो लोग इन कमजोरियों में घिरे हैं उन्हें सिर्फ मायूस छोड़ देना काफ़ी नहीं है, उन्हें सिखाया जाना चाहिए, उन पर तनकीद होनी चाहिए और उन्हें उनके अपने ऐबों से आगाह करना चाहिए ताकि वो सुधर सकें। समझें, जिंदगी 3 अदवार में तकसीम है, माजी, हाल और मुस्तकबिल। इसमें हाल मुख्तसर तरीन है,
मुस्तकबिल गैर यकीनी है। माजी वो वाहिद चीज है जो यकीनी है, क्योंकि माजी वो वक्त है जिस पर किस्मत की कोई गिरफ्त बाकी ना रही और जिसे कोई भी दोबारा अपनी मर्जी के मुताबिक बदल नहीं सकता। लेकिन यही वो चीज है जिससे दुनियावी मामलात में उलझे लोग खो देते हैं, क्योंकि उन्हें अपने माजी पर नजर डालने का वक्त ही नहीं मिलता, और अगर उन्हें ऐसा मौका मिल भी जाए तब भी वो इसकी याद से कतराते हैं, क्योंकि वो उन कामों को याद नहीं करना चाहते जिन पर उन्हें शर्मिंदगी हो। वो अपने ज़ाय शुदा वक्त को याद करने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि उन्हें डर होता है कि उनके गुनाह और बुराइयां उनके सामने खुलकर आ जाएंगी। वही बुराइयां जो किसी लम्हे की आरज़ी लज्जत में छुपी थी, लेकिन हकीकत में धोखा थी। कोई भी शख्स अपने माजी की यादों में खुशी से वापस नहीं जाना चाहेगा जब तक कि उसके तमाम आमाल खुद उसके अपने ज़मीर की कसौटी पर पूरे ना उतरते हों, और ज़मीर कभी धोखा नहीं खाता। वो शख्स जो अपनी यादों से खौफजदा हो वही है जो लालच में बेहद हरीस रहा था, तकब्बुर में दूसरों को हकीर जाना था, जीत के वक्त जिसने काबू खो दिया होगा, धोखेबाजी में जो बेवफा साबित हुआ होगा, लूट मार में जो हद से बढ़ गया होगा, फजूल खर्ची में जिसने सब कुछ बर्बाद कर दिया होगा। मगर हैरत यह है कि यही माजी दर हकीकत सबसे ज्यादा महफूज और मुकद्दस है, क्योंकि ये इंसानी खतरात से बाहर निकल चुका है। ये किस्मत के नशेबो फराज से आज़ाद हो चुका है। इसे कोई महरूमी, कोई खौफ, कोई बीमारी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ये ऐसा सरमाया है जिसे ना छीना जा सकता है, ना बर्बाद किया जा सकता है। ये एक पुरसकून दायमी दौलत है। हाल हमारे पास एक वक्त में सिर्फ एक दिन देता है, और वो भी लम्हा लम्हा करके, लेकिन माजी के तमाम दिनों को तुम अपनी मर्जी से याद कर सकते हो, उन्हें अपने शऊर में वापस ला सकते हो, उन्हें समझ सकते हो। यही वो चीज़ है जो दुनियावी मामलात में गुम लोग नहीं कर सकते। सिर्फ पुरसकून और फिक्रों से आज़ाद जहन ही अपनी पूरी जिंदगी को देख सकता है, जबकि बेहद मशगूल लोग ऐसे जकड़े होते हैं जैसे किसी जुए में फंसा हुआ बैल जो पीछे मुड़कर नहीं देख सकता। ये लोग इसी तरह अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, जैसे किसी बर्तन में नीचे से सुराख हो और कोई उसमें कितना ही पानी डाल दे वो हमेशा ज़ाय हो जाएगा। इसी तरह अगर हमारी जिंदगी के लम्हात संभालने की जगह ना मिले तो चाहे हमें जितना भी वक्त दिया जाए वो ज़ाय हो जाता है। हाल की हकीकत ये है कि ये इंतहाई मुख्तसर है, इतना मुख्तसर के बाज़ लोगों को इसका शऊर तक नहीं हो पाता। ये मुसलसल हरकत में है, बहाव में। ये आने से पहले ख़त्म हो जाता है और किसी चीज़ को रुकने की मोहलत नहीं देता, बिल्कुल वैसे जैसे आसमान के सितारे अपनी गर्दिश में कभी ठहरते नहीं। यही वजह है कि दुनिया में उलझे लोग सिर्फ हाल पर तवज्जो देते हैं, मगर हाल इतना मुख्तसर है कि इसे ठीक से थामा नहीं जा सकता, और ये भी उनकी मसरूफियात के दौरान उनसे चुरा लिया जाता है। क्या तुम जानना चाहते हो कि ये लोग क्यों लंबी जिंदगी नहीं जीते? देखो कि वो कितनी शिद्दत से लंबी जिंदगी की ख्वाहिश रखते हैं। कमजोर बूढ़े कुछ और सालों के लिए दुआएं मांगते हैं, अपनी उम्र को छुपाने की हजार कोशिशें करते हैं, खुद को धोखा देते हैं जैसे वो वक्त को भी धोखा दे लेंगे। मगर जब आखिरकार कोई बीमारी उन्हें याद दिलाती है कि वो फानी हैं, तो वो डर जाते हैं और डर कर मरते हैं, जैसे वो जिंदगी को छोड़ नहीं रहे बल्कि जिंदगी उन्हें धक्का देकर निकाल रही हो। तब वो अफसोस करते हैं कि उन्होंने जिंदगी ज़ाय कर दी, और अगर उन्हें दोबारा मौका मिला तो वो भरपूर जिएंगे। उस वक्त उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने कितनी बेमकसद चीज़ें जमा की जिनका वो कभी लुत्फ भी ना उठा सके। उन्होंने जो मेहनत की वो सब बेसूद गई। मगर जो लोग दुनियावी झमेलों से आज़ाद रहते हैं उनके लिए ज़िंदगी हमेशा काफ़ी होती है। वो इसे ज़ाय नहीं करते, वो इसे बेतरतीबी से नहीं जीते, वो इसे किस्मत के हवाले नहीं करते, वो इसे लापरवाही में नहीं गंवाते, वो इसे फजूल खर्ची में बहा नहीं देते, बल्कि वो इसे कीमती सरमाया समझकर संभालते हैं। चाहे ये कितनी ही मुख्तसर क्यों ना हो, ये मुकम्मल होती है, ये काफ़ी होती है। और इसीलिए जब उनका आखिरी दिन आता है तो एक दाना शख्स बगैर किसी हिचकिचाहट के मजबूत कदमों के साथ मौत का सामना करता है। शायद तुम ये जानना चाहते हो कि मैं किन लोगों को मसरूफुल हाल कहता हूँ।
तुम्हें ये गुमान नहीं करना चाहिए कि मेरा इशारा सिर्फ उन लोगों की तरफ है जो अदालतों में मुकदमे लड़ने में इतने मगन रहते हैं कि उन्हें वहां से सिर्फ चौकीदारों के आने पर निकलना पड़ता है, या वो लोग जो अपने हामियों की भीड़ में इज्जतदार बनकर दबे होते हैं, या किसी और की मजलिस में जिल्लत के साथ दबाए जा रहे होते हैं, या वो जो अपनी समाजी मसरूफियात के बायस अपने घरों से निकलकर दूसरों के दरवाजे पर सर पटकते हैं, या वो जिन्हें किसी काजी की नीलामी में मशकूक दौलत इकट्ठी करने की हवस रहती है जो एक दिन उनके लिए अजाब बन जाएगी। बाज लोग अपनी फुर्सत के लम्हात में भी मसरूफ होते हैं, अपने महल जैसे घर में, अपने आरामदेह बिस्तर पर, या हत्ता के मुकम्मल तन्हाई में भी वो अपनी बदतरीन सोहबत में होते हैं, खुद अपनी ही जात के साथ। तुम उनकी जिंदगी को फुर्सत नहीं कह सकते, बल्कि बेकार मशगूलियत कह लो। क्या तुम उस शख्स को आज़ाद और मुतमईन समझोगे जो गैर ज़रूरी वसवसे में पड़कर अपनी बेशकीमत कांसी की मूर्तियों को तरतीब देने में लगा रहता है, जिनके दाम कुछ बेवकूफ़ जमा करने वालों की दीवानगी की वजह से आसमान को छू रहे होते हैं, और वो अपने दिन के कीमती घंटे पुराने धात के टुकड़ों पर ज़ाया कर देता है? या वो शख्स जो कुश्ती के मैदान में बैठा लड़कों की कुश्ती को देख रहा होता है, या वो जो अपना बोझ उठाने वाले जानवरों को उम्र और रंग के मुताबिक जोड़ों में तकसीम करने में मशगूल रहता है, या वो जो नए एथलीट्स के अखराजात पर दौलत इन्वेस्ट करता है? क्या तुम इन लोगों को फारिग समझोगे जो अपने दिन के कई घंटे नाई के पास गुजार देते हैं सिर्फ इसलिए कि रात भर में जो बाल उग आए हैं उन्हें काट सकें, या किसी एक बाल पर बहस करने के लिए कि आया वो तराशने के लायक है या नहीं? वो अपने बिखरे बालों को संवारने में वक्त ज़ाया करते हैं, या फिर साइड के बालों को पेशानी पर बिठाने की कोशिश में। कितने गुस्से में आ जाते हैं अगर नाई जरा सी बेहतियाती कर दे, अगर कोई एक बाल गलत तराश दिया जाए, या कोई घूंघर दुरुस्त अंदाज में ना पड़े, मुश्तैल हो जाते हैं। कौन ऐसा होगा जो अपनी जान की हिफाजत से ज्यादा अपने सर की आराइश की फिक्र में लगा होगा? कौन इज्जतदार बनने की बजाय चमकदार और खुशनुमा नजर आना पसंद करेगा? क्या तुम इन्हें फुर्सत में कहोगे जो अपने वक्त को कंघी और आईने में तकसीम कर देते हैं, और वो जो दिन भर गाने बनाने, सुनने और सीखने में लगे रहते हैं, जो अपनी आवाज को तोड़ मरोड़ कर गैर फितरी सुर में ले आते हैं, जबकि फितरत ने उनकी आवाज को साफ और सादा रखने के लिए बनाया था, जो हमेशा उंगलियों से मेज पर किसी ख्याली धुन का संगीत बजाते रहते हैं, जो खुद से ज़ेरे लब गुनगुनाते रहते हैं, हत्ता कि जब किसी संजीदा और दुख भरी मुलाकात में बुलाया जाता है तब भी ये फुर्सत नहीं, सुस्त रवि में गुम मशगूलियत है। और इनकी ज़ियाफ़तों के बारे में क्या कहना? क्या मैं इन्हें भी फुर्सत के लम्हात शुमार करूं जब मैं ये देखता हूं कि वो अपने चांदी के बर्तन को कितनी बारीकी से तरतीब देते हैं, वो अपने कमसन खादमों के लिबास कैसे संवार कर बांधते हैं, वो कितने बेचैन होते हैं ये जानने के लिए कि बावर्ची ने गोश्त को कैसे तैयार किया, वो कैसे चेहरे के तासुरात देखते हैं कि बगैर दाढ़ी के गुलाम कितनी तेजी से दौड़ रहे हैं, कितने माहिर तरीकों से परिंदों को सही हिस्सों में तकसीम किया जाता है, कितनी बारीकी से कम उम्र गुलाम शराबियों की थूकी हुई चीज़ें साफ करते हैं। ये सब करके वो अपने आप को खुश ज़ौक़ और नफीस ज़ाहिर करने की कोशिश करते हैं, और उनकी ये बुराइयां उनकी निजी ज़िंदगी के हर पहलू में दाखिल हो चुकी हैं, यहाँ तक कि वो खाने पीने जैसी फितरी ज़रूरियात को भी दिखावे और नुमाइश से आज़ाद नहीं रहने देते।